हाँ 20 तारीख लिखी हुई है वो पीजी पाठ्यक्रम के लिए, स्नातक को पाठ्यक्रम। समझ गए, उसमें एमबीए कहाँ है? ऑल पोस्ट All courses, sir. Sir, actually, I have talked. समस्त मतलब जी. Sir, I have talked with the MPDT Bhopal regarding this case. हाँ That my etiquette is being affected. तो पहले तो उन्होंने मेरे को अलाउ नहीं किया था कि आप रजिस्ट्रेशन के फॉर्म आगे बढ़ने रहेंगे, और जब उन्होंने मैंने उनको कहा कि आई हैव अप्रोच टू द बीसी मैम दैट ही हैज गाइडेड फॉर द एग्जाम इन द मंथ ऑफ जनवरी, सो ही सेड अगर आप 30 के पहले ईयर एंड के पहले अगर आप ऑर्डर ला के देते हैं तो हम आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे देंगे, वो आप जाके इंदौर में जहाँ पे भी सीटें अभी खाली हैं आप अपनी पसंद के कॉलेज में दे सकते हैं। मतलब सर इनका जो क्राइटेरिया रहता है वो रहता है 50% इन ग्रेजुएशन, एंड आई हैव कंप्लीटेड आफ्टर डिडक्टिंग द 2 सब्जेक्ट माय रिजल्ट इज 68%, and after adding the 2 subjects if I secure 30 to 32 more the subjects then it will be around 70-71% on एटीकेटी कितने सब्जेक्ट में है आप? 2 सब्जेक्ट में सर बस। विच ईयर, विच सेमेस्टर? फर्स्ट सेमेस्टर सर। फर्स्ट सेमेस्टर, एंड यू एट प्रेजेंट यू आर इन फाइनल सेमेस्टर? सर I completed all semesters sir. It's a 3 years course. Yes sir. So in 3 years you could not clear the ATKT. जब फर्स्ट टाइम हुई थी मैंने एग्जाम का जब फर्स्ट टाइम तो हाँ। उस टाइम से कोरोना हो गया था, तो Where is the mark sheet of your final year? ये 2 सब्जेक्ट में आई है आपको, मैनेजमेंट स्किल, मैनेजर स्किल और हिंदी में। that because of only 10 marks in one subject and 8 marks in another subject. So I will pass the exam till then my project admission should be approved so that my year will be not dropped. ATKT permits you to participate in same course in next year, next semester, but not in higher course. ATKT का एडवांटेज उतना एक्सटेंड तक नहीं कर सकते कि आपको पीजी के लिए भी ATKT कंटिन्यू करें। No sir, PG etiquette will not be considered. I will pass it to ATKT होगा क्या है आपको मालूम? फुल फॉर्म Yes sir. क्या है? Anytime keep the नहीं, एनी टाइम अलाउड टू कीप allowed to keep the डाउट है ना, तो वो परमिटेड है उसी कोर्स तक ही, उसके आगे बाहर नहीं परमिट करेंगे आपको। जो MPDT You will have to clear entire BBA with marks, then only you can get an admission in MBA. Yes sir, but ATKT को we can't extend up to next year say degree course. but sir till that you can give the order that provisional admission should be given after अगर if I not the pass etiquette then it will be cancelled. MBA के लिए you should be cleared BBA. Sir, the criteria which is given in the rule book of etiquette, it says that the student should be cleared with 50%. Cleared. अभी as on today you are not cleared. Sir, but sir, my guidance is so that my year will not be dropped. I will submit my exam, last exam was on 7 and on 9 they will give me the Gopni result will say in DAV. Through which my whole 6 semester result will be prepared. So sir, my year will not be dropped. अभी कब है एग्जाम? अब सर 10 जनवरी है सर। किस कॉलेज से कर रहा है? Stanford Institute of Professional Studies. Stanford College sir. There are approximately 500 plus seats vacant in all over NC. ये जो P2 दिखा रहे हैं किस एकेडमिक सेशन का है? That is of enrollment process of Devi in the विश्वविद्यालय। किस सेशन का? This session sir, this session। कहाँ लिखा है इसमें इस सेशन? डेट हाँ, ये क्योंकि इसके आगे ये सब जो मिल रहा है 22-23। हाँ, तो 22-23 के लिए है तो 22-23। Sir, on page number 19, there was a direction by the Supreme Court of India to the MPDT to conduct the last session counting on 30th November. I have registered for it, but I was not able to complete the registration because my these 2 subjects were not completed. Then I approached to the BC man in the DAV. They said we will continue, we will conduct your exam in the month of December end. And today they have given me the timetable. On the behalf of the JNI, I said I want timetable. So sir, within till 9 January I will get my result fully updated. I have submitted to the college, but I will take it. So because of 15 to 20, I will not want to. ये आपने लीगल एड से पिटीशन फाइल की है? हाँ? क्यों? Because sir, my parents were not approaching, मेरे को ये नहीं बोल रहे थे कि आप केस लगाइए, so and I was not even not my earning very much, so इसलिए मैंने legal aid से MBA की फीस कितनी है? so in which college I am approaching हाँ, 55,000 per year. you want legal aid? वहाँ फीस तो आप ही जमा करेंगे ना? No sir, it will be in 4 installments. हाँ, बट My father will submit sir. My father will pay. लीगल एड का पैसा इसलिए नहीं है देने के लिए। लीगल एड का पैसा ऐसा नहीं है वेस्ट है, हमको लॉयर को कम से कम 7,000 रुपए फीस पे करना पड़ेगी। My lawyer is refused the legal aid. He told me 2 or 3 days before that through legal aid we are not approaching your case. Directly I am approaching.
This will not come under the legal. Sir, MPDT is only for the registration of the counseling. A student is freely to take admission in any of the colleges you want in Madhya Pradesh. प्रवेश प्रक्रिया के अंदर हुआ तो प्रवेश कल जो मैटर आया था मिस्टर आपको उसमें बोला था कि गवर्नमेंट नहीं आकाश शर्मा थे उनका कहा था कॉलेज के एडमिशन की काउंसलिंग तो कब की बंद हो गई है Sir, yesterday I saw that case of हाँ। Bhatnagar, sir. हाँ। That case was of UG और वैसे उनकी लास्ट डेट थी 31 अगस्त, बट जो पीजी की जो डेट थी उनकी भी लास्ट डेट थी 38 अक्टूबर, बट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने इसको 30 नवंबर तक एक्सटेंड करा था। उसका उन्होंने मैंने जब बात की थी उसके बाद भी उन्होंने जिन बच्चों को प्रोविजनल रूप से कॉलेज में उन्होंने एडमिशन दिए उनके लिए 16 नवंबर तक एक डेट। नहीं बट आप जो P2 लगा रहे हैं इसमें यूजी के लिए भी डेट 30/12 है लिखी हुई है इसमें। हाँ सर, दैट इज द स्टूडेंट्स हु आर प्रोविजनली एडमिटेड आफ्टर दैट डेट, उनके लिए ई प्रवेश करने की आप 30 तक एंड फॉर अच्छा जिनने एनरोलमेंट करा लिया था जी, एंड फॉर पीजी दे हैव सेंड मी फ्रॉम एमपीडी। आपका एनरोलमेंट है एनरोलमेंट से इसलिए कंप्लीट नहीं हो पा रहा क्योंकि ये 2 सेमेस्टर नहीं, बट मैंने एमपीडीटी में बात की तो उन्होंने कहा कि अगर ऑर्डर एनरोलमेंट नहीं है तो फिर कैसे एडमिशन होगा। सर एमपीडीटी मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऑर्डर लेके आते हैं तो हम आपको ऑर्डर लेंगे तो फिर तो करनी पड़ेगा उनको बट ऑर्डर हम क्यों करें जब तक रूल्स परमिट नहीं करता विल नॉट इशू ओवर रेट जिसका अल्टीमेटली आपको फाइनल रिलीफ नहीं मिलना है। सर अगर मैं ये पास एटीकेटी का बेनिफिट केवल उसी कोर्स में मिलता है उसके आगे कोर्स में नहीं मिलता एटीकेटी। आई विल पास जो मिस्टर अगर आप एग्जाम दे दिए तो रिजल्ट अगर वेट नहीं आया होता तो देन यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन बट नॉट इन केस ऑफ फेल इट इज सप्लीमेंट्री इसमें सप्लीमेंट्री क्लियर करना आपको तो इसलिए इट्स अनसर्टेनिटी कि आप सप्लीमेंट्री क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सर आई विल सबमिट एटीकेटी का बेनिफिट आपको आगे इससे आगे नहीं मिलेगा यहीं तक पढ़ने के लिए मिलेगा बस दैट्स ऑल ये कोर्स पूरा करने के लिए। सर पर मैं एफिडेविट वाली जो भी मेरे पास एफिडेविट भी रेडी है रेडी करवाया था हाँ एक एडवोकेट के थ्रू कि जिस भी कॉलेज में मैं एडमिशन लूंगा उनके लिए मैंने एफिडेविट ये लिखा था कि जिस दिन मैं एडमिशन लूंगा उससे 2 मंथ्स के बिटवीन में मैं अपनी मार्कशीट टीसी मैगजीन और जो ये डॉक्यूमेंट को सबमिट करूंगा पर वो कॉलेज ने एक्सेप्ट नहीं किया था। नहीं कर सकते ना क्योंकि नहीं दे सकते वो एडमिशन अनलेस यू आर पास तो वेस्ट ऑफ मनी वहाँ भी जमा करेंगे फिर आप कल को वापस लो सर मैंने साल बचे को क्योंकि एमपी की फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम से मार्च तक होंगे जब तक मैं उसके सारे आगे कर दूंगा। सर एमपीडीटी ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन नॉट फॉर अलोकेट योर कॉलेज। आपको एटीकेटी आई थी जनवरी 2020 में जी सर ये कौन सा सेमेस्टर है फर्स्ट सेमेस्टर ठीक है इसके बाद आपके कितने सेमेस्टर के एग्जाम हो गए 5 सेमेस्टर 5 सेमेस्टर के एग्जाम इन 2 साल में हो गए ठीक है इसी बस यही एग्जाम और नहीं हुआ क्या जनवरी जो जिसमें आप फेल हुए थे फर्स्ट ईयर का सर ये हुआ नहीं क्योंकि उस टाइम कोरोना आ गया था। उस टाइम ही उसी कोरोना के बाद आप 5 एग्जाम दे चुके हैं हाँ तो ये क्यों नहीं दिया ये वाला इसका सप्लीमेंट्री एग्जाम सर ये हुआ नहीं था। क्यों नहीं हुआ जब हुआ सेकंड सेमेस्टर सर वाज जनरल प्रमोशन, थर्ड सेमेस्टर वाज जनरल प्रमोशन हाँ और फोर्थ सेमेस्टर वाज ओपन बुक एग्जाम, फिफ्थ सेमेस्टर एग्जाम वाज 2021 में एक बैच आया होगा एमबीए बीबीए का 2022 में एक बैच आया होगा उनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए होंगे ना उस एग्जाम में क्यों नहीं दिया आपने। पर दैट वाज सर तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये ऑल कॉलेज में था तो उस समय उन्होंने इस मैटर को नहीं देखा था पर जब मैंने उन्होंने कहा कि अगर आपको कोरोना था तो आप कोरोना की रिपोर्ट लगा लीजिए तो हम आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में परमिट ऐसे आपके जैसे कितने लोग हैं जिनको एग्जाम देना ये फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हाँ। सर ओनली 7 to 8 स्टूडेंट्स तो उन्होंने कहा था कि आप कोरोना की जो रिपोर्ट है वो लगाइए तो हम आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बीबीए सप्लीमेंट्री एग्जाम अलाउड करेंगे सब्जेक्ट मैच करके तो वो मैंने एप्लीकेशन लगाई थी अलाउड मी आल्सो ऑन 9 November I came the application but after 20 days I go to the BBA department and they said we are taking your exam as per the old policy मतलब मैंने 20 days तो वो पढ़ाई करनी एनईपी के साथ फिर जब 20 दिन बाद मैं गया स्टेटस जाने के लिए एग्जाम कब तक होगी एनईपी तो उन्होंने कहा कि हम ओल्ड पॉलिसी वापस ले रहे हैं। सर अगर ये एग्जाम की डेट पहले आ जाती तो जिस कॉलेज को मैं अप्रोच कर रहा था एमबीए एडमिशन के लिए वो मुझे प्रोविजनल एडमिशन फॉर्म भरने के लिए अलाउड कर रहा था विद रजिस्ट्रेशन आप इंटरम रिलीव वो तो मांग ही नहीं रहे ना आप क्या मांग रहे हैं कि एमबीए पाठ्यक्रम प्रथम चरण की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सीमेट क्या है सीमेट 22 की प्रवेश दिनांक को आगे बढ़ाया जाए। ये उन्होंने एक लॉयर साहब ने जब पेपर स्टडी का ये पर सर मैं ये चाहता हूँ कि जो डेट सबमिशन है इसकी डॉक्यूमेंट्स की उसमें ये इसको प्रोविजनल एडमिशन अभी जहाँ लेने में ले लेता हूँ तो मैं कॉलेज की क्लासेस भी अटेंड नहीं करूँगा 7 को मेरा एग्जाम होगा 9 को जब पूरा प्रॉपर रिजल्ट होगा उसके बाद जाके मैं क्लासेस अटेंड करूँगा पर सर मैं ईयर बेस में करना। अब आपने याचिका में लिख रहे हैं कि एटीकेटी के उक्त विषय की परीक्षा 2/12/2022 को देगा
देगा मतलब कि 15 बार को तो पिटीशन लगाई आपने। नहीं सर, उन्होंने गलती से लिख दिया, उनको ये लिखना चाहिए था कि दिसंबर माह में देगा। दिसंबर माह तो अब बचे कितना है? सर टाइम टेबल कहाँ है? दिखाइए टाइम टेबल आपका अभी इसका। जो बाहर देगा एग्जाम हो गया कुछ भी पिटीशन बनाए भाई आप। 28-12 का हैं? 28-12 से स्टार्ट। ये आपके लिए हो रहा है एग्जाम? नहीं सर, और भी स्टूडेंट जिनको भी सर। हाँ हाँ, मतलब आपके जैसे लोगों के लिए है ये जी सर। और सर ये भी मैं आपको एक बात बता सर, ये भी एटीकेटी एग्जाम एग्जामिनेशन। हो नहीं रहा था सर। आई हैव अप्रोच टू द सीएम हाउस, मैं वहाँ पे एप्लीकेशन देके आया था, टू द गवर्नर आल्सो, बिकॉज ये तो खुर्दाबादी हुई नहीं। मैं भोपाल तक गया था कि ये अगर एग्जाम भी हो जाए ना, और मैं ये गया था 25 नवंबर को, क्योंकि 30 नवंबर उसकी लास्ट डेट थी। पर अप्रिशिएट योर एफर्ट। दिसंबर में उन्होंने सर निकाला। वी अप्रिशिएट योर एफर्ट। अगर डायरेक्शन मुझे उसी टाइम दे देते जिस दिन मैं भोपाल गया था 25 नवंबर को, तो मुझे यहाँ अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ी। 30 नवंबर को एक हो जाता, पर The respondent are directed to accept। क्या लेना आपका फॉर्म? सर जो एमपीडीटी है, फिफ्थ हाँ। नंबर रिस्पोंडेंट, हाँ। उनको ये बोले जो इसके जो दो डॉक्यूमेंट बच रहे हैं, मतलब जो एक सप्लीमेंट्री की मार्कशीट जो बच रही है फर्स्ट सेमेस्टर की, वो ये विद इन 10 जनवरी को ये सबमिट कर देगा। जब तक ये इसको अलाउड कीजिए प्रोविजनल एडमिशन के लिए, और मैं जिस कॉलेज में प्रोविजनल एडमिशन लूंगा, अब ये भी उसमें लिख दीजिएगा, मैं जब तक क्लासेस अटेंड नहीं करूंगा जब तक कि मैं पास नहीं हो जाता। अगर पास होगा वो बाद में देखेंगे। हाँ, The petitioner is permitted to take provisional admission in MBA course. It is made clear that this order shall not create any right. Police, after receipt of the reply, this court shall decide whether, without clearing the examination of BBA, the petitioner was eligible to take admission in MBA course. ऐसा करिए, इसमें ऊपर का लिखिए काउंट petitioner person submit that due to the corona the DAVB did not conduct the ATKT examination for BBA student in last 2 years. Therefore, he could not clear the 2 subjects. However, he has passed the final examination, clear the final semester with marks कितने हैं? हाँ, आउट ऑफ 3600 to 2470, कितना परसेंटेज आ रहा है? 68% सर। 68%. It is more than the minimum required for admission in PG course, that is MBA. हैं? That is 50% हाँ, by the government. It is made clear that if the petitioner has failed to clear these 2 exam in these 2 subjects, that is managerial skill and Hindi, then he shall not be entitled to pursue the course of MBA. पर्सन इनके इसमें CC का सिस्टम है अब वो बाद में बताइए जब आएगा। एक बार ना पासवर्ड